Welcome to The Code. Construction, design and engineering. This is India's #1 construction podcast. So hi and welcome to India's #1 construction podcast. I am Rishabh Agarwal, your podcaster friend. And today we are talking to a brilliant architect who's running a firm which is more than 50 years old now, and he's a second gen into the business. We have with us Mr. Nishant Goyal, and I would like him to introduce himself to you guys. Hello, everyone. Thanks, Rishabh, for having me. Pleasure, sir. So, guys, I'm Nishant Goyal, and I like to think of myself as someone who weaves stories. So, I weave them through my work, which is architecture and urban design. I try and touch lives of people through the built space and through the urban space. I'm also a tennis player, played 2 world championships for India. I love to travel, and I like to think that I'm a fun person. So that's me in a nutshell. I'm pretty sure you are, because when we were talking before this and you were talking about the stories that you like to weave, which we will come back to in great detail. But आज हम कुछ special projects की बात कर रहे हैं आपसे. In fact, we will be running this in 2 parts. I want to talk to you about the first private project that you did, and which was recently inaugurated on 7th of Feb, yesterday, right? Yes. Zaveneer Daubert. Yeah. Right? Run us through it. What is the project about? Why is it important? What's happening behind the scenes? What was inaugurated yesterday? बताइए कुछ. So Zaveneer Daubert. So Zaveneer is the Indian company and Daubert is the American company. Okay. So that's a JV. So Zaveneer manufactures a lot of products in the Daubert line of products in India. But like I said about the story, so I am someone who really looks at the context and starts my stories from there. And the existing plant of Zaveneer Daubert at the same site was devastated by a fire in October 2022. So the entire plant was devastated. And their managing director and the owner of the company, Mr. Saket Bhartia, he has shown tremendous resilience to not only start their immediate production so they could serve their clients on an immediate basis at that particular time, but he thought immediately that he would rebuild the plant and he would rebuild it as one of the best plants in that line of work in the entire world. And thus, this whole dream or this project was born. And for me, that is a very powerful story because it's about resilience. It's about rebirth. It's about someone making the biggest challenge of his life and turning it into an opportunity. Amazing. Sounds like a story filled with a lot of grit as well. You and your firm design a lot of industrial clusters, a lot of industries. What was different about ZD's philosophy and design and the kind of work they do? And I'm pretty sure that the work also predominates the first core where you are looking at the design of the building and the structure of the factory unit. What was different about ZD compared to the other things that you've done? So I'll touch upon that. I'll actually talk about the process, how we as a firm or I as an architect with my team work, and then maybe we can... Sure. Let's do it. Yes, yeah. Makes sense. Sure. So when we look at industrial projects, industrial projects is one of the sectors that we work in. For me, it's about listening. You see, because in a factory or in an industry, it's the process which the client owns. That is the hero and that is the main protagonist. So the process is the most important thing and everything else is woven around it. Yeah. So as an architect, in the first few meetings, I'm just a listener. And I will speak to everyone in the client's team. I will speak to the guy who's operating the machines. I'll speak to, of course, the GM and the process engineer. A lot of times clients have a process consultant. Like in this project, we had Mr. Kulkarni, who's a master at, looking at fluids and oils, etc. So this is a plant where they blend oil with solvents, etc. and create high performance coatings. Okay. Some of them are
to ensure that there is no rusting in metals, etc., etc. So in the first few meetings, we only want to listen to the client. We ask various questions which enable us to gather data. So it's a very inquisitive mindset that we have when we design. And once we have these pieces in place, then we start building the story of the built infrastructure. So when I talk about this particular project, Zavina Daubert, it's a very different plant because it's a completely IoT driven plant. That means there is pretty much no human doing any work. Right? So suddenly that human angle was replaced by the machines. So while the machines in a normal plant do the work, but the humans are actually controlling it, shifting the material from one place to the other. Yeah. So we're talking about human comfort. Yeah. Here, we're talking about machine comfort. Yeah. That particular machine needs this environment. And plus, this is a very highly flammable plant. They lost their plant, right? Yes. So for us, that was a key tenet of the story. So Zavina Daubert की design story क्या है? So after all this data on our table, so number one, we wanted connection to the context. Context हमारे लिए multifold था. The history, or rather the challenge of the situation. तो आज भी हमने जो कल inaugurate कराया and the inscriptions कि so and so plant inaugurated by so and so person. Yeah. We have conserved or preserved, sorry, not conserved. We have preserved 2 girders which were part of the main rafters of the original plant. They have been integrated in the landscape near the flags, right in front of the reception. They've been preserved by a specially designed coating by Zavina Daubert itself so that they remain in the state that they were about a week back and don't decay or rust further. So they'll remain in that state. And they've been inscribed with this anecdote. And, that reminds everyone of the context. Yeah. Of what happened and what led to this plant. So they became a key element of the design. So that's one element. The other element, for me personally, is always more than just the project. कि मेरी कहानी से मैं community को और अपनी country को क्या इफेक्ट कर रहा हूँ, कैसे इफेक्ट कर रहा हूँ, right? तो जब हम when we do a plant like this, it's not just about that manufacturing activity. It's about you contributing to your country. It's about you ensuring that the community out there gets uplifted क्योंकि वहाँ jobs create होती हैं. Yeah. अब when you go to that plant, we have a warehousing company right next to us, and on the other side is a forging plant. So, and this is just bang near to the highway. So actually I like to call the form of the building as like a piece of cake. Okay? तो जब हम अपना story line concept बना रहे थे तो हमने the normal exercise which every architect does कि अच्छा ये site है, इस पे ये setbacks छोड़ने हैं, ये bylaws है, इतना maximum coverage है. जब वो सब करके हमारे पास एक building का mass निकल के आया. In industrial projects you want to maximize the ground coverage क्योंकि ज़्यादातर manufacturing high volume space में होता है तो आपको ground floor पे करना होता है. Yes. तो वो उसमें एक wedge है, एक chamfer है एक तरफ. So it's like this rectangle which is got a chamfer. तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे कि ये तो we are making a piece of cake, but the parameters here are so tough that the design is not going to be a piece of cake. Right. तो there's an interesting story there. तो जब ये सब components हमारे सामने थे और ये मशीन ही हमारा client था एक तरह से इस project में, तो then हम लोगों ने इसकी जब through the discussion it came about कि this plant has to have very calibrated approach to everything.
सो हम लोग जब इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स करते हैं तो वन ऑफ आवर की ड्राइवर्स इज ऑलवेज एफिशिएंसी. यस. क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इज ऑल अबाउट एफिशिएंसी. आप जितना आप मटेरियल हैंडलिंग का टाइम कम कर दोगे, जितना आप मैन मूवमेंट स्ट्रीमलाइन कर दोगे, जितना आप एनर्जी कंजम्पशन स्ट्रीमलाइन Yes. करोगे, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड द डिज़ाइन एंड एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ is something that sort of brings all this together. Right. तो हमने कहा कि when we are designing such a new age factory, in their industry, it's probably the first IoT driven plant. I was speaking to the guys from America, the original, the principals of the Daubert company. Yeah. And they said, even we do not have this level of IoT integration, automation in our plant in Daubert, in America, in the main Daubert plant. तो हम लोग, the client has got a vision to create something which has never been attempted before. Yeah. And us as designers are in a very lucky space to innovate because the plant is all about innovation. Absolutely. If there is one, I mean, हम लोग के जो discussions होते थे client meetings में, normal discussions में हम बात कर रहे होते हैं कि यार ये चीज़ कितनी दें, वो चीज़ कितनी दें. Saket ji never said that. हमारे discussions were very very detailed. एक detail उस plant की, when I talk about, you'll be amazed to hear. But everything was about innovation. There was no boundaries. There was nothing in our discussion which said कि ये तो ऐसे ही होता है. Nothing. अगर हम कहीं पे या तो वो बोल दें या मैं बोल दूंगा तो अगले जने का सवाल आता था क्यों होता है ऐसे. Right. क्योंकि आप पहली बार बना रहे हो ऐसा प्लांट in the world. Yeah. So why does the design have to be very conventional? It has to be innovative. तो ये एक बेसिक कहानी थी इस प्रोजेक्ट की कि वो एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि एक बहुत पावरफुल कॉन्टेक्स्ट है. सारी टीम उस कॉन्टेक्स्ट से आइडेंटिफाई करती है क्योंकि सारे लोग उस स्पेस में थे या ऑफिस में थे जब ये इंसिडेंट हुई. Right. वी एज डिजाइनर्स हमारे लिए एक वो बहुत पावरफुल कॉन्टेक्स्ट है और दूसरा हमारे लिए एक फंक्शनल कॉन्टेक्स्ट है जहां पे क्लाइंट एक एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रहा है जिसमें वो इनोवेशन कर रहा है. तो डिजाइन भी इनोवेशन करना पड़ेगा ना. Absolutely. तो इसी कहानी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो ये हमारा एक बेसिक टेनेट था. तो हमने इस ब्रीफ में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? आर्किटेक्चरल टीम. सो इस ब्रीफ में हमारे पास of course we were the architects and the primary engineers. We had a structural consultant on board for this project. Yeah. Mr. Abhay from Skeleton. And Abhay Gupta. Yeah. And within our team, we had Mr. Keerti, who is the electrical expert. Okay. Mr. Pukraj, who is the HVAC expert. Of course, Mr. Alam in our team, who's the plumbing and firefighting expert. And of course, Manu, myself, and Anubhav, Ankit. We four were the primary design team. And then of course, there's a team who's assisting. Right. Do you have to hire any agencies from outside? No, we have everything in-house. Of course, Abhayji was an external consultant in this. Yeah. But the entire engineering is in-house. Nice. So then we actually started, we took this theme of innovation. The next thing we decided on for this project was everything has to be very well calibrated. So if I'm using a material, if I'm using a glass, if I'm designing something, हवा में नहीं होना चाहिए. Right. एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो डिजाइन भी कैलिब्रेटेड होना चाहिए. हर चीज की मेरे को बाद में ऑडिट कर सकूं ऐसा बनना चाहिए. Nice. राइट. और क्या इनोवेशन करना है तो हमने कहा यार सेफ्टी इज अ मेजर थिंग हियर. कैसे करें इसमें इनोवेट. तो आई think this is probably one of the first few projects in India where the entire lighting is on Cat6 cable. Okay. It's low voltage. Okay. आप कभी सोचना कि कितने प्रोजेक्ट्स में अगर आपके जान पहचान में कहीं पे भी आग लगी होगी तो क्यों लगी होगी. Electrical issues. और सबसे उसमें भी क्या होता है. शॉर्ट सर्किट क्यों होता है. वोल्टेज फ्लक्चुएशन या फिर तार लूजली कोई 2-3 लाइट का लूज कनेक्शंस लूज कनेक्शन होता है स्पार्क क्योंकि वो हाई वोल्टेज
ट्रांसमिशन है, Yeah. आपकी लाइट में, आपके पंखे में, हर जगह हाई वोल्टेज तार जा रहा है। अब अगर मैं बोल दूं कि ये हाई वोल्टेज नहीं है, लो वोल्टेज है, जैसे आप डेटा, आप अपने नेकेड हैंड से अपना डेटा का तार छू लेते हो, उसको कुछ नहीं होता। प्लग कर लेते हो, Absolutely. कुछ नहीं होता, It's very safe. कोई स्पार्क नहीं होता। Yeah. आप सोचो पूरे प्लांट में अगर वायरिंग ऐसी है, कितना सेफ है प्लांट? But उसकी सप्लाई तो you need a high voltage for running system. ओनली अप टिल द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। Okay. तो मेरे मेन पैनल से जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया का 1 होगा 2 होगा, वहां तक है। उस वो तो प्रॉपर केबल है, कनेक्टेड है, उसमें कभी कोई आज ये लाइट खराब हो गई, वो हो गई, वो सब हो नहीं रहा। Right. वो तो एक बार सेटअप हुआ, कमीशन हो गया, टेस्ट हो गया, खत्म। Do you think it's also the way the wiring is done sometimes? Because ऑफ कोर्स, क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग में तो आई वुड लाइक टू थिंक एवरीवन डज इट वेरी वेल Yeah. एंड टू द राइट पैरामीटर्स, बट धीरे धीरे 10 साल 15 साल में जब कुछ चीजें खराब होती हैं, यू हैव टू मेंटेन थिंग्स, योर इलेक्ट्रिकल टीम में चेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो चीजें आई वुडंट से टेम्पररी, बट they are not as perfect as they should be, absolutely. and that's what leads to the fault. Yes. So this was a major innovation and client was on board. And it's easy to maintain. And There's nothing to maintain. later on. आपका देखो लाइट का ड्राइवर खत्म हो गया, तो जो 36 वाट की लाइट है वो अभी 27 वाट ले रही है बिजली, तो आपने 15-1% तो बिजली बचा ली। आपकी लाइट खराब नहीं होती, वो ड्राइवर खराब होता है। ड्राइवर हट गया, क्योंकि ड्राइवर का काम क्या है, लाइट तो डीसी है, वो ड्राइवर एसी करंट को डीसी बना रहा है, Right. तो ड्राइवर ही हट गया, उसकी नीड ही नहीं है. उसकी नीड ही नहीं है। अब ऑटोमेशन इज इनबिल्ट। कैट 6 आप स्मार्ट केबलिंग कर रहे हो ना, तो Yes. अब वो तो कंट्रोल वायर है, Absolutely. तो अब आप चाहे उसको जैसे कंट्रोल करो। Yes. तो हम अपनी लाइटिंग को ह्यूमन सेंट्रिक कर सकते हैं, मीनिंग जैसा सूरज की जो कलर ऑफ लाइट है फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मैं अपनी लाइट को उसे इमिटेट कर सकता हूँ। Right. मैं लक्स लेवल के हिसाब से प्रोग्राम कर सकता हूँ। Right. आपको कोई भी प्रोग्रामिंग करनी है, वेदर इन टर्म्स ऑफ कलर, इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग, आपके हाथ में है, क्लिक ऑफ अ बटन। यू डोंट नीड स्विचेस, वायरलेस स्विच है हमारे पास, जाए जहां कर लो कंट्रोल, या फिर आपके मीटिंग रूम में जो कंसोल है वहां से कर लो कंट्रोल। Interesting. सो ऑल दिस, सो आई एम सेइंग दिस इज वन ऑफ द इनोवेशन। Right. क्यों? क्योंकि हमने कहा सेफ्टी है, तो बिजली का तार क्यों जरूरी है? क्या आज की डेट में मैं लाइट को सेफ नहीं बना सकता? Wow. इट्स अबाउट द व्हाई, इट्स अबाउट क्यों। Right. ये होती है कहानी। तो जब हम प्रोजेक्ट में जब हम एक अंडरलाइंग स्टोरी बना लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट की अंडरलाइंग स्टोरी इज इनोवेशन, इट्स अबाउट क्वेश्चनिंग द कन्वेंशन, Yes. it's about safety because the context has dictated that it's a highly flammable factory. तो हम सिर्फ एनबीसी के नॉर्म क्यों फॉलो करें भाई? राइट, लेट अस गो बियॉन्ड इट। वो तो एक बेसिक हाइजीन है। आई एम एज अ डिजाइनर, आई एम नॉट हियर टू प्रोवाइड माय क्लाइंट बेसिक हाइजीन, Right. आई एम हियर टू वैल्यू एड, राइट? How did you get everybody on board with that why? Because ये why जो है ना, इतना मुश्किल सवाल होता है कई लोगों के लिए. A lot of people run away from accountability. A lot of people don't even want to innovate. Innovate करने का एक ideology पूरी different होती है. वो mentality नहीं होती आधे से ज्यादा लोगों में. आपने कैसे मैनेज किया है यार ये? सी ऋषभ, हर प्रोजेक्ट की पैरामीटर्स डिफरेंट है, हर प्रोजेक्ट की ड्राइवर्स डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें किसी को साथ लेना ही नहीं पड़ा, क्योंकि द प्रोजेक्ट इज अबाउट इनोवेशन एंड सेफ्टी, right? It's you're trying to attempt something which has never been done before, Right. and you're trying to be extremely safe because of the context. Yes. So ये दो चीजें तो इस प्रोजेक्ट में नॉन नेगोशिएबल थी, और वो क्लाइंट से आता है। It starts from the client who is the head of the project, and then it permeates to the entire team. And we as designers, हमारा रोल है उसको इंश्योर करना in the built environment, right? If we are on board with that vision, या वो स्टोरी हमने अपनी भी बना ली है, तो हमारी टीम की भी बन गई। हमारी टीम की बन गई तो एग्जीक्यूशन टीम की बन गई, एग्जीक्यूशन टीम की बन गई तो फाइनल में जो वो लेबरर काम कर रहा है उसकी भी बन गई। Did you ever have a prior experience of a similar context before ever? I think I did. Okay. Maybe not in this field, but a lot of projects we do are about innovation. Now, No, innovation is one thing. I'm talking about a problem that had occurred before and then finding that same solution, because that core value is very different, right? अब वो mindset कह रहा है देखो ये एक बार हो गया, मैं दोबारा जिंदगी में नहीं होने दूंगा ये. yes,
वो एक माइंडसेट अलग है. Yes. तो उस तरीके से अब नए सॉल्यूशंस निकालने हैं, इनोवेट करना इज समथिंग Right. यू डू एवरी I understand what you mean. You're talking about the context of such a powerful राइट. context or an incident. अब उसके बाद फिर अपनी एबिलिटी को यूज करके और अपने माइंड को यूज करके और अपनी टीम की एबिलिटी को यूज करके टू कम अप विद अ सॉल्यूशन दैट इज एक्चुअली वेइंग प्रॉपर ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सपेक्टेशन. वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात लगती है मुझे, क्योंकि मुझे अब यू मेंशन डॉक्टर अभय गुप्ता, राइट? अब उन्होंने वो शिवा स्टैचू बनाया है विच इज द टॉलेस्ट शिवा स्टैचू इन द वर्ल्ड. उससे पहले कोई स्टैचू नहीं बनाया था उन्होंने. एंड आई आस्क्ड हिम, बॉस इतना कॉन्फिडेंस अपनी एबिलिटी पे कैसे आता है that you can actually take that undertaking and say, I will do it. So when I'm listening to you, it just shows a special problem with a special context and special expectation without actually having touched something. क्योंकि बिल्कुल सब कुछ सेम तो मिलता नहीं लाइफ में. हजारों प्रोजेक्ट्स हैं जो भी आपने इतने सालों से करे हैं, बट सेम प्रोजेक्ट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट तो नहीं आ सकती ना. वो एक्सपीरियंस तो पहले नहीं हो सकता. सो देन द इंटायर जो पूरा दारोमदार है वो आपकी एबिलिटी पे रह गया और आपके कॉन्फिडेंस पे रह गया दैट वी कैन डू दिस. वो कैसे आता है यार? मतलब We are trained for that, Rishabh. As an architect, हम लोग, when I look at the starting point of my career, Yeah. or when I was in college, I had some amazing teachers. I mean, I'm always indebted to them. And so I had a lot to learn from architect Karan Grover and architect Percy Pithawala, and then later on architect Colin Fournier in the UK. Now, both Karan and Percy, when I was at these formative years जहाँ हम सीखते हैं architecture, if you look at their work has nothing conventional about it. They've always questioned the domain, the norm. तो आई थिंक दैट मेरे लिए वो कहानी वहां से शुरू होती है. तो आज की डेट में अगर when I get clients who are very stuck in terms of, I shouldn't be using the word stuck, but They have a fixed mindset. who have a fixed mindset, Yeah. and they have a correct mindset. Yeah. I'm not anyway judging it. उन्हें अपना कॉन्टेक्स्ट पता है. उन्हें अपना कॉन्टेक्स्ट पता है, उन्हें पता है उन्हें क्या चाहिए. Absolutely. Yes, that's a very easy client, if I may put it that way, for me to work with. But मेरी कहानी फिर वहां अलग होती है. बट जब मेरे को एक क्लाइंट ऐसा मिलता है जो कि एक पावरफुल कॉन्टेक्स्ट है और वो कुछ करना चाहता है जो कि कभी नहीं हुआ, राइट. तो वहां हमारा डिजाइन की भी जो कहानी होती है ना, वो पुश करती है बाउंड्रीज को. और वहां हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है हमेशा कि हम वो डिस्कशंस करें और वो इनोवेशन करें. इनफैक्ट व्हाट हैपेंस इज, एंड आई एम श्योर इट्स इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, every professional, whether a lawyer, CA, architect, whoever, or even a product manufacturer, always has dreams कि यार मुझे ये चीज अच्छी है, मुझे कहीं ना कहीं करनी है, मुझे और कुछ नहीं, मैं अपने घर पे ट्राई करता हूँ, राइट? तो जो ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं ना जिसमें आपको ये मिलती है स्पेस, उसमें आप ये सब टेक्नोलॉजीज को जज करते हो कि कौन सी टेक्नोलॉजी हो इस प्रोजेक्ट के लिए एप्ट है, राइट. इसके कॉन्सेप्ट में, इसकी कहानी में बैठती है, और आप हमेशा उसको ट्राई करोगे क्योंकि आपको वो स्पेस मिली है उस एक्सपेरिमेंटेशन की. सर इतना आसान तो नहीं हुआ होगा ये काम करना. चैलेंजेस आए होंगे. चैलेंजेस तो हर एक चीज में आते हैं, छोटे बड़े, और इनोवेशन में मुझे लगता है बड़े चैलेंजेस ज्यादा आए होंगे. सो इस प्रोजेक्ट में ना एक सबसे बड़ा चैलेंज है. पहले तो मैं आपको, हम कॉन्टेक्स्ट इतनी, मैंने बहुत रोजी पिक्चर यहाँ पेंट कर दी है कॉन्टेक्स्ट. हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि इतना आसान. अब मैं आपको थोड़ी चैलेंजिंग पिक्चर पेस्ट करता हूँ. मैंने आपको बताया एक तरफ वेयर हाउस है, एक तरफ फोर्जिंग यूनिट है. बिनोला में ये फैक्ट्री है. वहां इतनी धूल है ना ऋषभ, इतनी डस्ट लेवल्स हैं, मतलब आई कैन नॉट इवन बिगिन टू टेल यू कि कितनी डस्ट लेवल्स हैं. एंड जब वो हमारा नवंबर, दिसंबर, जनवरी वाले महीने होते हैं, तो वहां डस्ट विद स्मोक विद गॉड नोज व्हाट ऑल हैपेंस. इट्स क्रेजी. ह्यूमंस के लिए तो वो बुरा है ही, हमारी मशीन्स के लिए भी बुरा है. एग्जैक्टली. So the biggest challenge was, and Saketji's company Zaviner Daubert is into making primarily metals के लिए high performance coatings. तो हमने कहा भाई अब यार मेटल के लिए हाई परफॉर्मेंस कोटिंग बनाते हैं, तो
हमारे मटेरियल पैलेट में मेटल का बहुत बड़ा अहमियत होनी चाहिए, Yeah. right? So we had to use metal, and in the plant now we have used galvalume sheets. Tata BlueScope से हमने specific designed galvalume sheets लिए हैं, so not the normal galvalume sheets. We've used zinc, coated zinc, and we've developed special profiles for my aluminium fins, which will have lights etc embedded in it. वो special हमने profiling कराई for those fins, and of course glass and stone. Were you able to source everything from India? Yeah, everything is from India. Okay. But yes, everything is not what you pick up from a standard catalog. Right. In fact, it's all थोड़ा लीड टाइम रहा, उसकी या कहीं कोटिंग में इनोवेशन है, कहीं उसकी प्रोफाइलिंग में इनोवेशन है, कहीं उसकी फिक्सिंग मैकेनिज्म में इनोवेशन है. जैसे हमारी स्ट्रक्चर ग्लेजिंग है, ठीक है, ग्लास हमारा लोई ग्लास है, बट इट्स अ स्टैंडर्ड ग्लास, राइट? लेकिन उसकी फिक्सिंग बिल्कुल अलग है. Yeah. All the horizontal joints are staggered in my glazing. So while there is a verticality to it, the horizontal line is not straight. Yeah. It's all staggered, right? तो हर चीज में जब हम उस मटेरियल को यूज करने जाते थे ना, हमारे दिमाग में डिजाइन टीम की जो कॉफी डिस्कशंस होते हैं वो यही होते थे कि भाई इसमें इनोवेशन क्या कर रहे हो आप, राइट? व्हाट इज द एडवांस्ड मेथड ऑफ आइदर इंस्टॉलिंग और कोटिंग और यूजिंग दिस मटेरियल. Yeah. तो सो एनीवे वी वर एट द चैलेंज. तो इतनी धूल है वहां कि हमने कहा यार हम मेटल और ग्लास ये सब यूज तो कर रहे हैं, बट इसको मैनेज कैसे करेंगे? और वहां क्या है ना, हाईवे के बाद एक वो वेयर हाउसिंग है, फिर साकेत जी की प्लांट है, एंड देन देयर इज दिस ह्यूज इंडस्ट्रियल एरिया. तो जब शिफ्ट चेंज होती है ना, तो ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर जस्ट वॉकिंग आउट टुवर्ड्स द हाईवे, क्योंकि वहां से उनको बस मिलेगी घर जाने के लिए या व्हाटएवर. Right. तो हमने कहा यार इसको मैनेज कैसे करें? आई मीन इमेजिन अगर उनका कोई इंटरनेशनल क्लाइंट, बिकॉज इट्स प्राइमरीली एक्सपोर्ट, आ रहा है और सडनली वहां दिस होर्ड ऑफ पीपल हैव क्लॉक्ड द फ्रंट ऑफ माय फैक्ट्री. व्हाट इंप्रेशन एम आई गोइंग टू बी सेंडिंग आउट? क्योंकि इस प्लांट में हमने एक एक्सपीरियंस सेंटर बनाया विच इज अ कंप्लीटली VR बेस्ड एक्सपीरियंस सेंटर. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस सेंटर, जिसके बारे में अलग, इट्स अ डिफरेंट टॉपिक. उनका ऑफिस भी है उसमें, बहुत हाईली कैलिबर्ड लेबोरेटरीज हैं. सो वी वांटेड टू हैव दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम द एंट्री गेट Yeah. ऑफ द प्लांट. Absolutely. तो हम एकदम बंद डिब्बे जैसा गार्ड रूम नहीं बना सकते थे. Right. We have to have a very inviting guard room with metal and glass, and the whole language has to start. Yeah. करें कैसे इसको? फर्स्ट चैलेंज. दूसरा चैलेंज, सिर्फ 7,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट, Plot size. 2 एकड़ भी नहीं है, 2.25 एकड़. उसमें साकेत जी ने बोला आई नीड एटलीस्ट 3 डॉक्स. 3 डॉक्स का मतलब है 3 ट्रक तो डॉक पे हैं, 2-3 ट्रक बाहर भी खड़े होंगे या बीच में भी. तो इतनी छोटी साइड में आप इतनी ट्रक हैंडलिंग कैसे करोगे? Right. प्लस ये तो ट्रक्स हो गए जो कि मटेरियल एक तरह से लेके जा रहे हैं. एवरीथिंग इज टू डू विद ऑयल एंड सॉल्वेंट्स. Yeah. तो ऑयल के टैंकर आएंगे, वो कैसे आएंगे प्लांट में? Correct. यू टॉकिंग ऑफ 2.25 एकड़, Yeah. राइट? For a factory unit, it's not a big piece of land. इट्स अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड फॉर दिस टाइप ऑफ हैंडलिंग. Yeah. सिर्फ एक असेंबली यूनिट हो, ठीक है, चलेगा कि दिन में, ठीक है जी, छोटे वाले गाड़ी आ रही है, 8-10 गाड़ी आएंगी छोटी वाली. Absolutely. यहाँ तो पूरे कंटेनर्स आ रहे हैं, ऑयल टैंकर्स आ रहे हैं, कैसे करोगे आप मैनेज? And then people movement. इट्स अ ह्यूज चैलेंज. Yeah. अब पीपल, ठीक है, पीपल बहुत कम है, मेनली दी ऑपरेटर या टेक्निकल स्टाफ है या लेबोरेटरी स्टाफ है या ऑफिस स्टाफ है, बट जितने भी हैं लोग तो हैं. Yeah. उनका मैन मूवमेंट हैज टू बी वेरी सेफ. Yes. वो कैसे मैनेज करोगे? तो चैलेंजेस तो बहुत थे, बट क्योंकि वी हैड दिस थिंग ऑफ इनोवेशन एंड ट्राइंग टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, एवरीथिंग वाज इजीली मैनेज्ड, ऑफ कोर्स थ्रू अ रीजन. तो अब जैसे डस्ट का आप सोचिए. सो वी हैड, क्योंकि पुरानी साइट थी, यस फायर हुई थी, बट फ्रंट में हमारे
एक ग्रीन बेल्ट है विच इज पार्ट ऑफ आवर प्लॉट. इट्स लाइक पुराने डिजाइन में भी वो ग्रीन बेल्ट थी. वी डिसाइडेड टू रिटेन दैट ग्रीन बेल्ट एंड वी ऑगमेंटेड द ट्रीज. वी स्टार्टेड प्लांटिंग डस्ट कैचिंग ट्रीज कि भाई हम एक अपना अंदर तो माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करें. Right. फिर हमारा जो गार्ड रूम है एज पे है ही नहीं. आई हैव टेकन माई गार्ड रूम बैक. तो आई क्रिएट दैट बफर which is an external space. Yeah. But because I've got trees, I've got planters, etc. such a way कि वो मेरा एक private buffer है कि अगर कोई विजिटर की व्हीकल या कोई ट्रक आया है तो वो जो ये मेन रोड है इसको डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं कर रहा. Right. वो थॉरो मूवमेंट या वो चीज, क्योंकि नॉर्मली वरना फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है जी, ट्रक आया है तो पीछे लाइन लग गई. Yes. अब वो ट्रक अंदर जाएगा तब गाड़ी आगे बढ़ेगी. हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता. Right. We have that buffer. 7,000 मीटर के प्लॉट में. When you come inside the guard room, उसके बाद pedestrian movement और ट्रक का मूवमेंट दोनों अलग पाथ्स हैं. बीच में एक प्रॉपर ग्रीन बफर है. राइट. तो आप once you check in from my guard room, उसकी व्हीकल एंड लोगों की एंट्री भी गार्ड रूम के दोनों तरफ अलग अलग है और पूरा मूवमेंट पार्ट भी अलग है. So there is absolute safety. कि कोई टैंकर आ रहा है, कुछ आ रहा है, ट्रक आ रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा. राइट. व्हेन यू आर अ पेडेस्ट्रियन. तो सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं. टर्निंग रेडियस, हम लोग ऑफिस में हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं टू वेल नॉट रियली सिमुलेट, क्योंकि वी डोंट यूज एनी फैंसी सॉफ्टवेयर, बट टर्निंग रेडियस अपनी ड्राइंग्स पे हम प्लॉट करते हैं. हम ये भी प्लॉट करते हैं ट्रक का ब्लॉक लेके कि वो एक बार घूमेगा डॉक पे आने के लिए, 2 बार घूमेगा, बिल्कुल नहीं घूमेगा. आइडियल है बिल्कुल ना घूमे, क्लियर मूवमेंट हो, बट एक बार हमें फ्रंट बैक कराना पड़ता है नॉर्मली. कैसे अंदर जाएगा, कैसे बाहर जाएगा. जब वो बाहर निकलता है वी हैव अ कॉन्वेक्स मिरर देयर कि कहीं कोई अगर पैसेंजर व्हीकल और ट्रक व्हीकल है तो वो दिख जाए. छोटी छोटी डिटेल्स हैं. टेबल टॉप्स हैं कि पेडेस्ट्रियन को अगर कहीं आपकी वेहिकुलर रोड क्रॉस करनी है तो पेडेस्ट्रियन सेम लेवल पे चल रहा है. Right. इतने छोटे प्रोजेक्ट में भी ये सब मैटर करता है, क्योंकि हम लोग माय फेलो डायरेक्टर, शी इज अ टाउन प्लानर एंड एन आर्किटेक्ट, आई एम एन अर्बन डिजाइनर. हमारी ट्रेनिंग ही हुई है कम्युनिटी और लोगों की लाइफ्स में हम क्या बेटरमेंट ला सकें. तो जब हम छोटा आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट भी करते हैं, वो एक पीपल सेंट्रिक अप्रोच आती है कि द इनहैबिटेंट्स हैव टू बी कंफर्टेबल. राइट. एंड इस प्रोजेक्ट में और इन एनी फैक्ट्री, द ट्रक इज ऑल्सो एन इनहैबिटेंट, द मैन इज द इनहैबिटेंट, द मशीन इज द इनहैबिटेंट. तीनों कंफर्टेबल होने चाहिए. तो ये कहानी है इसकी. तो चैलेंजेस बहुत हैं, बट यू गेट अराउंड देम. I want to talk to you about, I mean, I know your mother is a legendary architect in the architectural fraternity, and like pretty much everybody knows her. When you were studying to follow in the same steps, and of course I would say that you've actually gone beyond you and Manu, and you've actually made a reputation for yourselves as well over the years. Now the next gen is coming in. She's also studying architecture. Did you ever feel the pressure to fill in the shoes of your mother? And what's your advice for your next gen or the generations which are studying with her to tackle this? See, I hope I can be as sensitive to this as my mother and my father have been. क्योंकि बहुत मुश्किल है लेट गो करना, बट बहुत जरूरी है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन आपकी शैडो में ना बढ़े हो या आप इमिटेशन ना करे, बट अपनी कहानी, अपनी स्टोरी, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करे और फिर उसको एक्सप्लोर करे. अगर वो एक सेट वे ऑफ वर्किंग में बंध गए तो फिर इनोवेशन नहीं हो सकता. नहीं, फिर अपनी पहचान भी नहीं बनेगी. अपनी पहचान भी नहीं बनेगी. और अनफॉर्चुनेटली फैमिली ऑफ आर्किटेक्ट्स में ये होना बहुत इजी है. To fall into that? Yes, to fall into the same way of working. Yeah. यार काम तो चल रहा है, ऐसे ही चलेगा, यही प्रोसेस है डिजाइन का. तो आप भी कर लो. I mean, it's just very simple. The same team is available to you. Yeah. जो कई सालों से चल रहे हैं. There are a lot of people there. Yeah. But
So what my parents probably did when I look back, उस समय तो पता नहीं चलता था हमें. I'm sure they did it consciously. They never ever really interfered in my college projects. Of course, they were always there to help and discuss. But they gave you that space. Yeah, it was never like कि हर दिन कि अच्छा अब इसको क्या किया, अब इसको कैसे किया, इसको present कैसे. Never. Not very hands-on in terms of. If there was a question, I would ask them. Yeah. And of course, they would be there to help me. But it was never a thing कि नहीं अच्छा ये तुम्हें कॉलेज में होटल की प्रॉब्लम मिली है तो इसको तो ऐसे डिजाइन करते हैं. Never. Right. If I feel comfortable discussing with them, then they are there. Right. But they are not there to, influence me with their thoughts. So I was left alone to sort of learn to swim on my own, if I may put it that way. फिर हम लोग architecture किया, worked with Karan. Then I went for my masters in UK, and there, luckily, UCL, the Bartlett, which is the architecture college, is a very explorative college. Yeah. वहाँ पे we used to have only I think 12 hours of actual classes in a week. Oh, that's 16 hours, that's it. 16 hours I think. Oh, अच्छा. 12 या 16 में से एक फिगर थी. पूरे हफ्ते में बस उतने टाइम हम क्लास में होते थे. Okay. बाकी टाइम वी वर जस्ट एक्सप्लोरिंग. अब आप चाहे वुड वर्कशॉप में बैठो, आप कुछ मॉडल बनाओ, आप कंप्यूटर लैब में बैठो, आप go to the field, do whatever you want, but you are left to explore. So yes, of course, we were taught कि urban design principles क्या होते हैं, but we were taught कि what are the experiments that have happened in terms of city design, city planning. उस पे ज़्यादा thrust होता था. सर बट आपकी आर्किटेक्चरल एजुकेशन में मनी मैटर्स तो नहीं सिखाए जाते हैं, मैनेजमेंट नहीं सिखाई जाती. Which is a problem. इट इज अ ह्यूज प्रॉब्लम. Yeah. हाउ डिड यू टैकल दैट ओवर दीज इयर्स एंड कैसे वो आदत कैसे बनी? शायद अभी भी नहीं कर पाए. अगर पहले प्रोजेक्ट में किसी ने आपको बोला निशांत ओके ये बनाना है, कैन यू प्लीज गिव मी योर प्रोफेशनल फी फॉर दैट, व्हाट इट इज गोना बी? कुछ नहीं पता होता. That's a big problem. इट्स अ ह्यूज प्रॉब्लम. It's a huge problem. हमारे को एक प्रोफेशनल प्रैक्टिस करके एक सब्जेक्ट होता है नॉर्मली 5th ईयर में, but that is more to do with the COA handbook. And but unfortunately architects, we are always taught कि the design is above everything else, पैसा मिले ना मिले. साउंड्स टू बी डिजाइन करते 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 जीवन कट जाएगा. So it's just a very purist attitude, which is Yeah. good, because maybe you don't want to convolute the young mind at that stage. Do you But think having that said that, that brings in a sacred side to the project? yes, it does. The work. And it's important, but it's also a profession. So the money side is important. Absolutely. और कुछ नहीं तो जैसे बताते हो कि आपकी टीम में एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, एक इलेक्ट्रिकल, भाई खुद तो नहीं हम करते ना बिजली का डिजाइन, राइट? हम स्ट्रक्चर खुद तो नहीं बैठ जाते करने. देयर इज अ स्पेशलिस्ट. ऐसे ही सिखा दो भाई, तुम्हारा फाइनेंस मैनेज करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट होना चाहिए, जरूरी है. राइट? कोई CFO होना चाहिए. कितने ऑफिस में आपको CFO वर्ड पता चलेगा? किसी में भी नहीं है. नहीं. अकाउंटेंट तक नहीं पता था हमें, पता नहीं कितने साल बाद से एक अकाउंटेंट रखा. एब्सोल्युटली. और मार्केटिंग आप कर नहीं सकते, डायरेक्ट मार्केटिंग आप कर नहीं सकते. तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं. आप उस आर्किटेक्ट को कन्वोल्यूट मत करो, क्योंकि वो यंग माइंड है, उसको इस समय डिजाइन और उसकी प्योरिटी में रहना चाहिए. बट उसको ये तो बताओ कि ये होता कैसे है, कि लीगल वेटिंग होनी चाहिए उसके कॉन्ट्रैक्ट्स की, क्योंकि लायबिलिटीज होती हैं. पैसा कैसे मैनेज करते हैं, कैसे खर्च करते हैं, कैसे सेव करते हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं, विच होपफुली इन फ्यूचर हमारे प्रोफेशनल प्रैक्टिस का पार्ट बनेंगी. और अदरवाइज architects spend years and years trying to crack that. I keep maintaining this with a lot of engineers that I meet. One of the biggest challenges I see in the engineering fraternity is the absence of an engineer's license. Architects का होता है, doctors का होता है, lawyers का है इंडिया में शायद, Yes. CAs का है, maybe one more practice if at all. But especially in construction domain, जहाँ civil engineering की बात आती है ना, वो वैसे भी एक non-glamorous field है. Yes. So a lot of people don't want to enter it, and it is required very much because construction का boom है एक. Yes. And you're looking at an ever-growing construction sphere within the country. क्योंकि अब I don't think this wheel is going to stop for a very long time because this has been pushed into hyperdrive, infra development, and whatnot is happening.
and with the current government also, they are pushing a lot of projects. State right भी बन रही है. All state governments have their own budgets assigned. काफी कुछ हो रहा है. I keep maintaining this कि ये जो education of contractual law at least, कि होता क्या है कॉन्ट्रैक्ट, बनता कैसे है, आपकी टर्म्स क्या होनी चाहिए. ठीक है, यू कैन ऑलवेज हायर समबडी टू डू दैट फॉर यू, बट इट इज कस्टमाइज्ड टू यू एंड योर क्लाइंट. सो वो रिक्वायरमेंट्स अलग हैं. बट बेसिक्स तो पता होनी चाहिए. कुछ तो पता होना चाहिए कि आप बैठे हैं उसके अंदर मीटिंग में, आपको पता होना चाहिए आपका सही गलत क्या हमें है. कॉलेज में ये तो सिखाते हैं ना, स्लैब क्या होती है, बीम क्या होती है, सरिया क्या होता है, कंक्रीट क्या होता है, रफ डिजाइन भी सिखाते हैं कि एटलीस्ट हम लोग अवेयर तो हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट पैरामीटर है डिजाइन का, कुछ भी नहीं कर सकते, इट हैज टू बी बिल्ट. इसी तरह ये भी मतलब टच अपॉन तो करो. एब्सोल्युटली. तो वो नहीं होता बिल्कुल भी. One of the last two questions for this part. Why do you think somebody should pursue architecture if it is a good field to work in? एक और कहानी है बॉस. Please बताइए. I'm sorry, I'm going to say a lot of stories here. I love it. Please. So I have this very, very personal story, which is very close to me. मेरे लिए पर्सनली जॉयफुल एक्सपीरियंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं खुश नहीं हूं ना, तो मैं फिर ऑनेस्टली काम भी नहीं कर पाता. पर जब मैं खुश हूं, और खुशी का मतलब ये नहीं कि मेरे पास पैसे बहुत आ गए या सडनली मेरे को नाम बहुत मिल गया, कुछ भी नहीं है ऐसा. खुश है बस इंटरनल खुशी. राइट. मैं टेनिस खेल के खुश हूं. मैं ऑफिस में 4 घंटे वो एक टेबल पे बैठ के एक छोटी सी ब्रिक की डिटेल रिजॉल्व करके बहुत खुश हूं. खुशी इंपॉर्टेंट है. तो मेरे लिए जॉयफुल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी से रिलेटेड एक कहानी है प्लीज प्रोफेशन के बारे में. कोर प्रोफेशंस डॉक्टर, लॉयर, सीए, आर्किटेक्ट, ये 4 को मानते हो आप? एब्सोल्युटली. डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हो? एक प्रॉब्लम लेके. लॉयर के पास क्यों जाते हो? प्रॉब्लम लेके. सीए के पास प्रॉब्लम लेके हमेशा नहीं जाते, बट काफी बार प्रॉब्लम ही है वो लेके जाते हो. आर्किटेक्ट के पास क्यों आते हो? खुशी लेके आते हो. तो आर्किटेक्ट का क्या रोल है? आपकी खुशी का कस्टोडियन है आर्किटेक्ट. राइट. तो अगर आर्किटेक्ट खुश नहीं है, आर्किटेक्ट जॉयफुल नहीं है, तो आपकी खुशी का कैसे संभालेगा वो? बॉस फैंटास्टिक. सो दैट्स व्हाट आई टेल. मैं अपनी टीम को, अपने आप को, कभी बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ जो यंग आर्किटेक्ट्स हैं, मैं कहता तुम्हारा रोल तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट. क्योंकि तुम अगले की खुशी के कस्टोडियन हो. वो एक बिल्डिंग, एक कम्युनिटी, एक कुछ भी बनाने जा रहा है, उसके मन में विजन्स हैं, ख्याल हैं. उस विजन को रंग तुम्हें देना है. यस. तो तुम्हें तो फुल ऑफ लाइफ होना चाहिए, तुम्हें फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए, तुम्हें फुल ऑफ इनोवेशन होना चाहिए. कि तुम्हारे मन में तो 1000 सवाल होने चाहिए कि ये क्यों होता है. मेरे दोस्त लोग मेरी बहुत मजाक बनाते हैं मेरे टेनिस फ्रेंड्स. कहते हैं यार निशांत बहुत मुश्किल है तेरे से बात करना. मैं कहा क्या हो गया यार, क्यों? तो बोले कुछ भी बोलते हैं तो बोलता है क्यों. तो मतलब एंड it's a very genuine क्यों. I want to understand. Curiosity is very important. It's a curiosity. तो that is what is fueling you, right? तो क्या होता है कि हम लोग इस भ्रम में keep telling them guys stay humble. तुम इस भ्रम में आ जाते हो कि मैं आर्किटेक्ट हूं, I know what is good for you. बट ऐसा नहीं होता है. तुम मास्टर आर्किटेक्ट नहीं हो. कबूजियर साहब थे, राइट? आज आप कबूजियर नहीं हो, राइट? आपको इन टुडेज डे एंड एज हमारा रोल है कि हम अपने क्लाइंट के विजन को, अपनी क्लाइंट की थॉट प्रोसेस को समझें, सुने. वी हैव टू बी लिसनर्स बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग, राइट? अगर हमने समझ लिया, सुन लिया उसकी कहानी, उसको इम्बाइब कर लिया, तो फिर उसके बाद आप जो कहानी बनाओगे ना, वो उस प्रोजेक्ट की कहानी होगी. वो सिर्फ आपकी कहानी नहीं होगी, वो उस प्रोजेक्ट की कहानी होगी. और उस प्रोजेक्ट से एसोसिएटेड सब लोग उससे आइडेंटिफाई करेंगे, राइट? वरना वो सिर्फ आपकी कहानी बन के रह जाएगी. क्लाइंट और उसके लोग उसको ठीक है एक एस्थेटिक एंगल से देखेंगे, बहुत अच्छा है, बट उसको इम्बाइब नहीं करेंगे. कनेक्ट विद योर ऑडियंस वाली बात है. यस. This is exactly what I was training for when I was planning for my TEDx speech.
Right. So there was this young boy, 24-year-old, he was teaching me how to speak better. और गुरु तो कोई भी हो सकता है ना, एज तो मैटर ही नहीं करती. So he told me connect with your audience, and I was connected with Gen Z. So I called up somebody who's Gen Z. मैं बॉस ये Gen Z कैसे सोचते हैं, मुझे बता. I really want to know. Then I put those points forward, and I actually completely changed my speech 2 days before the speech. The result was good. Wow. अब आपने अच्छी बात तो बता दी कि आर्किटेक्ट क्यों बने. ये बताइए आर्किटेक्ट क्यों ना बने. What are the aspects of your profession which you don't like or would like to see change with time? ये तो टफ सवाल है. टफ है ये. मेरी आदत है टफ सवाल पूछने की. I think I love my profession. See, anything in it that you would like to see change. big time. One thing specifically. The money part. आर्किटेक्ट, नया आर्किटेक्ट की सैलरीज मतलब पिटन्स हैं. Yes. इवन अ 5-year experienced architect, pittance. I'm running an organization, तो मेरे को भी बहुत बुरा लगता है यार कि हम इतनी मेहनत everyone is doing in our office, but we are giving them a salary which it is because हमारे प्रोफेशन में फी बहुत कम है. Right. And unfortunately, architects are trying to cut each other in the fee. I think we should, I was speaking to a very senior gentleman who, amongst the architecture fraternity. Yeah. And I said, sir, Council of Architecture handbook में एक fee specified है ये वो. चलो ठीक है, आप लोग कहते हो कि हम बाइंड नहीं कर सकते, कि हर जना अपनी फी बोल सकता है. मैंने कहा एटलीस्ट एक ऐसी कुछ चीज बना दीजिए कि ये मिनिमम फी है. Minimum threshold. अरे सर आइडियल फी छोड़ दो आप, Yes. इट्स नॉट वर्किंग, बट एक मिनिमम फी डिफाइन कर दो Yes. कि इस मिनिमम फी के नीचे कोई प्रोजेक्ट हो ही नहीं सकता. Right. एमआरपी छोड़ो सर, एमआरपी के जमाने हटा दो आप. होते भी नहीं हम. राइट सर, एमएसपी कर दो, मतलब मिनिमम फी डिफाइन कर दो. क्योंकि अगर मेरे को फी नहीं मिलेगी तो मैं नीचे भी फी नहीं दे पाऊंगा. Right. टीम कैसे सस्टेन करेंगे. तो धीरे धीरे ये चीज हमारे प्रोफेशन को खराब कर रही है. बहुत पहले, आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस एग्जांपल और नॉट, मैं कहानी, एक और कहानी प्लीज. हम लोगों ने अपना ऑफिस, दिल्ली ऑफिस शुरू ही किया था यार. 2004 में हमने स्टार्ट किया था, 2005 की बात है. हमने पहला एम्प्लॉय रखा था और एक हमने ट्रेनी रखा जी. 4th ईयर में उसको ट्रेनिंग करनी थी. दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ रहा था. महीने भर आया वो ट्रेनिंग पे, सडनली एक दिन गायब. हमने कहा यार ट्रेनी है, बेचारे को सर्टिफिकेट चाहिए, कॉलेज खत्म करना है. तो जब वो 10-15 दिन नहीं आया तो मैंने उसको फोन किया. भाई और तो कोई था नहीं ऑफिस में, मनु, मैं और एक आशीष करके हमारा एक सबऑर्डिनेट होता था. तो मैंने फोन किया, मैंने कहा दोस्त क्या हुआ, तुम्हें ट्रेनिंग करनी है, सही हो, तबीयत सही है, कुछ हो गया, क्यों नहीं आ रहे. तो बोले सर मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया, अब मैं आर्किटेक्चर छोड़ रहा हूँ. तो मैं कहा क्यों, उस जमाने में कॉल सेंटर ही 2005 की बात कर रहा हूँ. मैं कहा क्यों यार, तू तो आर्किटेक्ट है, तू कॉल सेंटर में क्या कर रहा है. एग्जैक्टली. बोले सर आर्किटेक्चर छोड़ दिया, पैसे वैसे तो मिलते नहीं है. तो आप सोचिए ना, इस चीज की वजह से जस्ट टू बैग वन प्रोजेक्ट, क्योंकि हम 0.1% कम फी कोट कर दें, उससे आप प्रोफेशन को कितना नुकसान कर रहे हैं. राइट. करेक्ट. एब्सोल्युटली. So that is one thing that I want to point out. I think the entire industry of construction is marred with this problem when it comes to professionals. और ये इसका क्योंकि कोई एक mathematical तरीका नहीं है to actually come out with a figure. But with experience and everything, because you know what you're bringing to the table, you know the kind of problems you are solving within a project, and आप जिस depth से बात कर रहे हो about this factory design that we spoke about, कितने ही तो challenges आते हैं जो रोजमर्रा के टाइम पे, I'm sure you get constant calls कि okay ये scheduled है, visit जाना ही जाना है, and then you have to actually go and see what the problem is and solve it, right? Because it takes that man hours out of you. Yeah. Physical toll, mental toll हर तरीके की होती है. I'm sure it's not an easy job to pull. Sir, thank you so much for this enlightened session. This is my first conversation with you, and I think I would like go
ahead and tell you, please, इसको आखिरी मत करिएगा क्योंकि मज़ा आ रहा है आपसे बात करके. And I love the stories you're telling. In one of the episodes or the coming next one, we will talk about Vadnagar and the museum in it. If you have any questions for Mr. Nishant Goyal, please write to me at India's #1 construction podcast @gmail.com. You can follow me on Instagram and you can send me a message there. We will reply to you. अगर कुछ भी तरीके के आपके questions हैं, we will relay it to them, his team and him. And if they come back with answers, we will share them with you. So thank you for tuning in. Have a great day.